داستان سلطان نورالدین زنگ جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ بڑی ہمدردی اور محبت میں وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مجھے محترم کارلوس کے مرنے کا بے حد دکھ اور غم ہے۔ دیکھو، زندگی ایک مکتب ہے اور اس مکتب کے اندر فطرت ایک معلمہ کی حیثیت سے کبھی سہانے خوابوں اور کبھی کربناک بیداریوں میں گزرنے کا سبق دیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں بے بس شب و روز کا اسیر ہے، کہیں کمسن شریر بچوں کے کہکہے ہیں، کہیں ویران نگاہوں میں خوشبو کی نوحہ گری ہے، کہیں بے مسافت سفر میں مثل گل چہرے دکھائی دیں گے، کہیں دل کے آنگن میں ہجر کا ماتم ہوتا ہے، کہیں درد کی جوئے رواں میں وصل کی اتھاہ خوشیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بس یہ سربستہ پرواز ہی زندگی کا منشور ہے۔ زندگی کہیں طویل رات کے گھنے اندھیرے اور کہیں خزاں رسیدہ ساتھوں جیسی ہے، اور کہیں یہ خوشبوؤں کے منہ زور سمندر جیسی بھی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں کوئی سویا ہوا بچہ خوشی کا باعث بن جاتا ہے، کہیں کوئی جاگتی ہوئی عورت کے بین دکھ میں پگھلا دیتے ہیں، کہیں مؤذن کی صدا سکون کا دامن پھیلا دیتی ہے، اور کہیں رات کا آنچل گھٹن کا خوف طاری کر دیتا ہے، کہیں طفل شیر خار آغوش مادر میں بھی جذبوں کی تلخیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مجدد الدین رکا، پھر اس کے بعد ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، مرسینہ اور مشال، تم دونوں وقت کی حدت اور غم و فکر کی گہرائی میں اکیلی نہیں ہو۔ میں تم دونوں کے لیے اطمینان کا سایہ اور سلامتی کا گوشہ ہوں۔ اٹھو اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ دونوں بہنیں بیٹھی رہیں، اپنی ہچکیوں اور سسکیوں میں انہوں نے کسی حد تک قابو پا لیا تھا۔ پھر اچانک مرسینہ کے سر پر اپنا ہاتھ ہٹا کر مجدد الدین نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو، رونا بند کرو۔ مرسینہ چپ چاپ کسی فرما بردار بچی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ سر پر بندھے اس کے رومال سے مجدد الدین نے جب اس کے آنسو پونچھے اور آنکھیں صاف کی، تب ہمدردی، محبت اور چاہت میں ڈوبی ایک نگاہ مرسینہ نے مجدد الدین پر ڈالی۔ مجدد الدین نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ پھر جب اس نے اس کا شانہ تھپتھپایا تو ایک چاہت اور محبت میں چپ چاپ مرسینہ نے اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ اس موقع پر مجدد الدین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر بڑی ہمدردی سے کہنے لگا، اب بس رونا بند کرو۔ اس کے بعد نیچے جھک کر مشال کا بازو پکڑ کر مجدد الدین نے اسے اٹھایا۔ وہ بیچاری رو رہی تھی، اس کے آنسو بھی مجدد الدین نے صاف کیے، وہ بیچاری بھی نڈال سی ہو رہی تھی۔ پھر مرسینہ کی طرح اس نے اپنا سر مجدد الدین کے بائیں شانے پر ڈال دیا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر ان دونوں کو مجدد الدین لے کر سمرون کی مسحری کے قریب آیا۔ جو دو نشستیں تھیں ان پر دونوں کو بٹھایا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم دونوں ذرا میری طرف غور سے دیکھو۔ مرسینہ اور مشال سنبھلی اور مجدد الدین کے کہنے پر اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ مجدد الدین نے اس بار اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، اگر تم دونوں کے دل میں میری تھوڑی سی وقت، تھوڑا سا احترام ہے تو اپنے چہرے پرسکون اور مسکراہٹ بکھیرو۔ یوں جانو تم دونوں مجھے روتے ہوئے نہیں، مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ اس موقع پر مرسینہ اور مشال دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سنبھلی اور اپنے لبوں پر
हल्का सा तबस्सुम बखेर दिया था। मुजद्दिदुद्दीन खुश हो गया, कहने लगा, ये बात हुई ना, देखो तुम्हारे ताया बीमार हैं, अगर तुम इनके पास बैठकर रोती रहोगी तो याद रखना ये सेहत याब नहीं हो सकेंगे, बल्कि इनकी सेहत गिरती चली जाएगी। इनके पास बैठकर तुम लोगों को खुश होना चाहिए, इनके पास बैठकर अपने गम को फरामोश करके कहकहे लगाने चाहिए। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा इत्मीनान ही इनकी सेहत याबी का बायस बन सकता है। मरसीना और मिशाल ने अब पूरी तरह अपने आप को संभाल लिया था। मुजद्दिदुद्दीन ने जब देखा कि वो संभल गई हैं, तब इसने समरून को मुखातब करते हुए कहा, मोहतरम समरून, ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है। देखें गुजरने वाले गुजर जाते हैं, अगर इनके गुजर जाने को ज़िंदगी का रोग बना लिया जाए तो फिर याद रखिए ज़िंदगी में कोई भी इंसान सेहतमंद और सलामत ना रहे। मैं जानता हूँ भाई के मरने का बेहद दुख है और आपके इस दुख में मैं आपका बराबर का शरीक हूँ, लेकिन दुख बर्दाश्त करना पड़ते हैं। अगर आप भाई के गुजर जाने के दुख में यूं बिस्तर से लग जाएंगे तो फिर इन बच्चियों का क्या बनेगा, ये तो सोचिए, ये तो पिघल कर रह जाएंगी। समरून ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरी। नहीं बेटे, अब मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ, बस कारलूस की जुदाई ने मेरी कमर तोड़ दी है और मैं इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सका था। बहरहाल वक़्त के साथ साथ हालात ज़ख्म मुंदमिल करते जाते हैं। ये दोनों बच्चियां मेरे कहने पर तो चुप नहीं हो रही थीं। पहले जमारा भी इनके साथ बैठकर रोती थी, लेकिन वो इन दोनों की निस्बत किसी कदर बहादुर है। ये बच्चियां बहुत ज़्यादा हसास हैं। बहरहाल बेटे, मैं मुतमईन और खुश हूँ कि तुमने आते ही इन दोनों को संभाला दे दिया है। समरून जब खामोश हुआ तब मुजद्दिदुद्दीन ने इसे मुखातब करते हुए कहा, मोहतरम समरून, ये मरसीना और मिशाल तो ठीक से नहीं बताएंगी। अब ये बताइए कि ये दोनों बहनें कुछ खा पी भी रही हैं या भूख पर गुजारा कर रही हैं। समरून संजीदा हो गया, कहने लगा, बेटे लगता है इन्होंने तो खाने पीने से हाथ ही खींच लिया है। कभी अजबल, कभी इनकी माँ और कभी आपकी फूफी ज़बरदस्ती इनको कुछ खिला पिला देती हैं तो जहर मार कर लक खा लेती हैं, वरना इन दोनों बहनों ने तो दुख और गम को चादर बनाकर ओढ़ लिया है। बेटे शाम हो रही है, आज उन्होंने सुबह को कुछ नहीं खाया, ना दोपहर को। मुजद्दिदुद्दीन ने एक गहरी निगाह दोनों पर डाली, फिर वो समरून को मुखातब करके कहने लगा, पहले इन दोनों का बंदोबस्त कर लूं, फिर मैं आपके पास आकर बैठता हूं। पहले मुझे ये बताइए कि कोई तबीब आपका इलाज कर रहा है। इस पर समरून मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, बेटे इस मामले में कोई फिक्र ना करो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में शमसुद्दीन ने मेरा बेहतरीन ख्याल रखा है और हलब का बेहतरीन तबीब मेरा इलाज करता रहा है। मैं अब ठीक हूँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम ज़रा इन दोनों को संभालो, ये संभल जाएं तो यूँ समझना मैं खुद ही सेहतमंद हो जाऊँगा। मुजद्दिदुद्दीन ने अपनी निगाहें मरसीना पर जमा दी थीं। मरसीना ने महसूस किया कि वो बराबर इसकी तरफ देखे जा रहा है। तब इसने मुजद्दिदुद्दीन की आंखों में आंखें डाली, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए इसने गर्दन झुका ली थी। इस मौका पर मुजद्दिदुद्दीन बोल पड़ा, अब तुम दोनों बहनें उठो और मेरे साथ चलो। देखो मुझे खुद भी भूख लगी है। मैं चाहूँगा कि आज मेरे खतलख और घर के दीगर सब अफराद के लिए तुम दोनों बहनें खाना तैयार करो और आज मेरे साथ बैठकर तुम खाना खाओगी। मैं देखूँगा तुम दोनों ने अगर सुबह और दोपहर को कुछ ना खाया तो शाम को
किस कदर खाती हो। इसके साथ ही मुजद्दिदुद्दीन उठ खड़ा हुआ। इसकी तरफ देखते हुए मरसीना और मिशाल भी खड़ी हो गई थीं। तीनों बाहर निकले। सब लोग अभी तक सहन में खड़े थे। फिर मुजद्दिदुद्दीन ने जमारा और अबीरा को मुखातब किया, इन दोनों बहनों को मैं अपने साथ ले आया हूँ, तुम दोनों इन्हें अपने साथ ले जाओ। चारों बिल्कुल सीधा नाक की सीध में मतबख का रुख करो, खाना पकाओ। एक तो वैसे शाम हो रही है, मैं और खतलख इतनी देर तक लिबास तब्दील करते हैं, मगरिब की नमाज का वक्त हो जाएगा, हम नमाज पढ़ लें, इतनी देर में खाना तैयार हो जाएगा, फिर सब इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। जमारा और अबीरा दोनों मरसीना और मिशाल को पकड़ के अपने साथ ले गई थीं। इनके जाने के बाद अजबल ने पुरसकून अंदाज में मुजद्दिदुद्दीन को मुखातब किया, मुजद्दिदुद्दीन मेरे बेटे, खुदा का शुक्र है कि तुमने आते ही इन दोनों को संभाला दे दिया है। ये तो हमारी कोई बात नहीं मान रही थी, बस रोने धोने के अलावा इनके पास कुछ न था, खाना पीना भी छोड़ बैठी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे आने के बायस मरसीना संभल जाएगी, और अगर मरसीना संभल गई तो मिशाल आपसे आप संभल जाएगी। अब तुम दोनों भाई अपना लिबास तब्दील करो, इतनी देर तक नमाज का वक़्त हो जाएगा, फिर सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। इसके साथ ही मुजद्दिदुद्दीन और खतलख अपना लिबास तब्दील करने के लिए अंदर चले गए। जब दूसरे सब लोग जाकर समरून के पास बैठ गए थे, सब मुजद्दिदुद्दीन इस कमरे की तरफ बढ़ा जो इसकी ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। अभी वो कमरे में दाखिल हुआ ही था कि इसके पीछे पीछे मरसीना भी इसके कमरे में दाखिल हुई। इसके कदमों की आहट सुनकर मुजद्दिदुद्दीन पलटा। अपने सामने मरसीना को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर कहने लगा, मरसीना तुम खाना नहीं तैयार कर रही, क्या कोई ज़रूरी काम है? मरसीना अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल और बदल चुकी थी। मुस्कुराते हुए कहने लगी, लगता है आपको भूख ज़्यादा ही लगी हुई है। खाना तो अबीरा, मिशाल और जमारा तैयार कर रही हैं। मैं आपके पीछे इसलिए आई हूँ कि मैंने आपकी ख्वाबगाह में थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने आपके कमरे की पहली तरतीब बदल दी हुई है। मुजद्दिदुद्दीन मरसीना के करीब हुआ और कहने लगा, मैंने तुम्हें जो अपने पीछे अपने कमरे में देखा तो मुझे यही ख्याल गुजरा कि तुम फिर रो दोगी, लेकिन तुम्हारी हालत देखते हुए मुझे खुशी हुई है कि तुमने अपने आप को संभाल लिया है। इस पर मरसीना संजीदा हो गई और कहने लगी, अगर आप यहाँ होते तो यकीनन मेरी हालत वो ना होती जो आपकी गैर मौजूदगी में हुई है। आप यहाँ होते तो कम अज़ कम मुझे संभाला देते, मैं संभल जाती। मैं और मिशाल इसलिए रोईं कि इस तरह कोई हमदर्दी देने वाला ना था जिस तरह आपने हम दोनों को दी। जमारा भी बहुत रोई, लेकिन इसके पास भाई शमसुद्दीन थे। बहुत से मौके पर शमसुद्दीन ने जमारा को ऐसे संभाला कि जमारा अपने आप को संभालने में कामयाब हो गई। मरसीना की इस गुफ्तगू पर मुजद्दिदुद्दीन खुश हो गया। फिर वो अपने कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरे की हर चीज़ तब्दील हो चुकी थी। पहले की निस्बत कमरे की सफाई भी ज़्यादा हो चुकी थी। बिस्तर की हर चीज़ नई थी, बदल दी गई थी। कुछ देर तक मुजद्दिदुद्दीन कमरे का जायज़ा लेता रहा, फिर मरसीना की तरफ देखते हुए कहने लगा,